Hello everyone, my name is Pathan Uzef Khan, Assistant Professor of Shreya Institute of Pharmacy, Aurangabad. So today we are starting a new video lecture of Unit 3, that is Pharmacology of Peripheral Nervous Systems. So let's start. So first of all, nervous systems के दो parts होते हैं generally. That is first is central nervous systems and second is a peripheral nervous system. Centrally nervous system, it is related with the brain and spinal cord. Brain, which receives and processes the sensory informations, initiates responses, stores memories, generates thoughts and emotions. And spinal cord, which contains the signals from the brain and control reflex activities. So this is all about the central nervous systems. And next is a peripheral nervous system. So ये हम जो तो स्टडी करने वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट इज रिलेटेड विद द मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स. इट इज द नर्वस सिस्टम्स अदर देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व इंपल्सेस निकलते हैं या नर्व्स निकलते हैं, जैसे आपके क्रैनियल नर्व्स हो गए या फिर स्पाइनल नर्व्स हो गए, दीज आर कॉल्ड एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो ये हम आगे स्टडी करने वाले. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैविंग द टू टाइप्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. Motor neurons are the neurons that carries the motor impulses from the CNS. CNS से जो रिस्पॉन्स है, जो नर्व्स कैरीज करते हैं, उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स. एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स दैट कैरीज द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द CNS. जो मोटर इंपल्सेस हम CNS से लेते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स, और जो इंपल्सेस हम CNS से लेते हैं इट इज कॉल्ड एज द सेंसरी न्यूरॉन्स. The motor neurons having the two types, somatic nervous systems and autonomic nervous systems. Somatic nervous systems related with the all the voluntary muscles. जो भी voluntary muscles, for example skeletal muscles है, उससे related आपके somatic nervous systems होती है. तो उसमें गैंग्लिया mainly present नहीं होता है. पोस्ट गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया, उसमें synaptic cleft आपको present नहीं दिखेगा. और autonomic nervous systems it is related with the involuntary muscles. तो हम ये देखने वाले आगे. An autonomic nervous system having the two types. First is sympathetic divisions and second is a parasympathetic division. Sympathetic division related with the fight and flight conditions, and parasympathetic division is related with the rest and digest conditions. Next is a sensory and motor neurons. जैसे हम पहले कहा चुके हैं हमने कि motor neurons is related with the neurons that carries motor impulses from the central nervous systems to specific effector. It is called as motor neurons. A sensory neurons that carries the sensory impulses. देखो, motor neurons which carries the motor impulses and sensory neurons which carries the sensory impulses from the sensory organ to the central nervous systems are called as the sensory neurons. So आपने देखा होगा afferent neurons and efferent neurons. Afferent neurons means what? Or efferent neurons means what? The afferent neurons are carries the sensory input from the periphery to the CNS and modified motor output. जो तो एफरेंट न्यूरॉन्स वो कैरीज करते हैं उसके सेंसरी इनपुट फ्रॉम द पेरिफेरी यानी बाहर के पार्ट से वो सीएनएस को जो तो इनपुट्स कुछ देते हैं. इट इज कॉल्ड एज द एफरेंट न्यूरॉन्स. यानी एफरेंट नर्व्स क्या करते हैं, इनपुट देते हैं आपके सीएनएस को. और एफरेंट न्यूरॉन्स जब सेंसरी इनपुट आपको चले जाता है, ब्रेन को चले जाता है, सीएनएस को चले जाता है, वो कुछ रिस्पॉन्स करता है विद हेल्प ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स. द एफरेंट न्यूरॉन्स आर द विच कैरीज द मोटर signals from the CNS to periphery area of the body, isn't it? So next is a peripheral nervous system. जैसे कि हमने पहले कहा कि peripheral nervous system, central nervous system related with the brain and spinal cord. peripheral nervous system जो impulses निकलते हैं, जो nerves निकलते हैं, जैसे 12 cranial nerves है और 31 pairs of the spinal nerves, it is related with the peripheral nervous system. तो इसमें आपने पहले कहा है मैंने क्या, somatic nervous systems और somatic nervous systems आपको nerves और ganglia नहीं दिखाई देंगे. The nerves and ganglia present outside the brain and spinal cord. Peripheral nervous system आपको दिखाई देते हैं. So it includes the 12 pairs of the cranial nerves. So 12 pairs of the cranial nerves which includes the first of all optic, olfactory. जैसे हमने पहले कहा कि 12 pairs of cranial nerves होते हैं. Optic is related to the eye. उसके बाद जो होता है olfactory related with the nose. Oculomotor it is related with the all eye muscles. Trochlear it is related to superior oblique muscles. उसके बाद है ट्राइजिमिनल, इट इज रिलेटेड विद द फेस. साइनस है जैसे कि आप
इमेज में देख सकते हैं, साइनस है, टीथ। और मोटर मसल्स में भी उसके होते हैं मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन जो आप च्यूइंग करते हैं। उसके बाद है abducent, इट इज एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स आर देयर। उसके बाद है फेशियल रिलेटेड विद द मसल्स ऑफ द फेसेस। उसके बाद है वेस्टिबुलोकॉक्लियर, इट इज रिलेटेड कॉक्लियर आपने सुना होगा कि ईयर में होता है कॉक्लियर, रिलेटेड होता है ईयर्स, यानी साउंड से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है इंटरमीडिएट नर्व्स मींस बोथ द मोटर एंड सेंसरी नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, टंग एंड सॉफ्ट पैरेट में जो होते हैं। उसके बाद है ग्लासोफैरेंजिया रिलेटेड विद द फेरेंजियल मसल्स एंड सेंसरी में होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, टॉन्सिल्स एंड फैरिंग्स। उसके बाद वेगस में होता है मोटर में हार्ट, लंग्स, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी ट्रैक होगा उसका। सेंसरी में हार्ट, लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जीआईटी ट्रैक एंड एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद एक्सेसरी में होगा, और एक्सेसरी में ये इस तरह के पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हाइपोग्लॉसल में होता है मोटर में मसल्स ऑफ द टंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स। उसमें आपने देखा होंगे कि जो सेंसरी फाइबर्स है, सेंसरी फाइबर जैसे मैंने पहले कहा आपको सेंसरी नर्व्स होते हैं, तो सेंसरी फाइबर्स आपको रेड कलर में दिखाई देंगे और मोटर फाइबर्स आपको ब्लू कलर में दिखाई देंगे। उसके बाद हम देखते हैं 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जिसे सबसे पहले 8 पेयर्स सबसे पहले सर्वाइकल नर्व्स आते हैं, जैसे 8 पेयर्स होंगे उसके 8 सर्वाइकल नर्व्स होंगे। उसके बाद थोरैसिक नर्व्स 12 थोरैसिक नर्व्स होते हैं। उसके बाद लुम्बार 5 लुम्बार नर्व्स होंगे। उसके बाद सैक्रल के 5 नर्व्स होंगे और कॉक्लियर नर्व्स, लास्ट जो कॉक्लिया होता है टेल शेप कॉक्लियर नर्व्स एक होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन का जो पार्ट्स खत्म होता है या एंड होता है ब्रेन स्टेम, तो वहां से स्टार्ट होता है आपका स्पाइनल नर्व्स। उसमें आपको सर्वाइकल इनलार्जमेंट दिखाई देगा, स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगा, लुम्बार इनलार्जमेंट दिखाई देगा और लास्ट में आपको जो तो कॉक्लियर नर्व्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पहले कहा गया है क्या मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स होगा, तो इट इज रिलेटेड विद द सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स पहले कहा गया क्या, जो वॉलंटरी मसल्स है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स है, इट रिलेटेड विद द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं हम, कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड विद द वॉलंटरी मसल्स, और उसमें जो तो गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होते, ये आपको दिख रहा है इसमें, इट इज कॉल्ड एज द गैंग्लिया। इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्टली इसकी जो तो स्टिमुलेशन उसके इफेक्टर ऑर्गन्स पर जाते हैं। इट इज ऑल अबाउट द सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट इज रिलेटेड विद द दोज ऑर्गन विच आर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे आपकी जीआईटी टाइप में होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैविंग द टू टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से आपको जो तो ये गैंग्लिया दिखाई देता है। So this is all about the difference between somatic nervous systems and the autonomic nervous systems. After that, the autonomic nervous system. Autonomic nervous systems के बारे में आप जो तो डीप में स्टडी करेंगे। It is the branch of PNS, peripheral nervous system, responsible for regulating involuntary body functions such as blood pressures, heartbeat, digestions, and respirations. ANS is divided into two branches. Sympathetic nervous system, it is responsible for the flight or fight responses, and parasympathetic nervous system, it is help to maintain normal body function, that is a rest and digestion. मैं पहले बता दूं आपको क्या जो नॉर्मल पोजीशंस होती है बॉडी की, इट इज कॉल्ड एज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, जो आप बैठे हो आराम से बैठे हो तो वो कंडीशंस होते हैं आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स कंडीशन। ये नॉर्मल पोजीशंस होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पोजीशंस कब आती है, कंडीशंस कब आती है, जब फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो तो सिचुएशन में आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कन्वर्ट होती है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट इज एन ओवरव्यू ऑफ द एएनएस। जैसे ही मैंने पहले कहा क्या एएनएस में आपको दिखाई देगा क्या इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज मीन बाय गैंग्लिया? गैंग्लिया इट इज नथिंग बट अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। या आपको सीएनएस से ब्रेन से जो तो एक इंपल्सेस दिखाई दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके ऑर्गन तरफ जा रही है,
तो सबसे पहले जो होता है प्री गैंग्लियनिक होता है। प्री गैंग्लियनिक मींस व्हाट, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा जो बिफोर द गैंग्लिया होगा, इट इज कॉल्ड एज अ प्री गैंग्लियोनिक impulses, और after the ganglionic it is called as a post ganglionic impulses. The preganglionic neurons bodies lies in the CNS and post ganglionic axons of ANS are usually unmyelinated. Next is summary of autonomic nervous systems and their receptors. तो आपको अलग अलग टाइप के रिसेप्टर दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, तो कोलिनर्जिक में दो टाइप्स के रिसेप्टर्स आपको दिखाई देते हैं, निकोटिनिक एंड मस्करिनिक, और उसके न्यूरोट्रांसमीटर आपको दो टाइप्स के दिखाई देंगे, एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन उसका रिसेप्टर्स होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया, मोटर एंड प्लेट ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन दैट इंटरवेट द एड्रिनल मेडुला। मस्करिनिक रिसेप्टर्स तीन टाइप्स के होते हैं आपके, M1 इट इज रिलेटेड विद द CNS में प्रेजेंट होगा, M2 उसकी लोकेशन हार्ट पर होती है, और M3 इट इज लोकेशन ऑफ M3 इज स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। सो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा 2, अल्फा 1 है, अल्फा एंड बीटा होते हैं। अल्फा के दो टाइप से, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 इट इज रिलेटेड विद द वैस्कुलर स्मूथ मसल, अल्फा 2 इट इज रिलेटेड विद द प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल्स एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। बीटा इट इज रिलेटेड, बीटा हैविंग द थ्री टाइप्स, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 1 इट इज रिलेटेड विद द हार्ट के जो SA नोड्स, AV नोड्स और वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं उस पर प्रेजेंट होता है। बीटा 2 इज अ ब्रांकियल स्मूथ मसल यानी लंग्स पे प्रेजेंट होगा, और बीटा 3 इज द एडिपोस टिश्यू उस पर वो प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इसके नॉन इफिनेफ्रिन एंड इफिनेफ्रिन इसके न्यूरोट्रांसमीटर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपैथेटिक ड्रग। उसमें हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स एक्टिंग आपको दिखाई देंगे। कैटेकोलामाइड्स, नॉन कैटेकोलामाइड्स, इस टाइप के ड्रग्स आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग में कैटेकोलामाइड्स में एंडोजेनियस, डोपामाइन, नॉन इफिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, अल्फा 1 अगोनिस्ट, अल्फा 2 अगोनिस्ट, बीटा 1 अगोनिस्ट, बीटा 2 अगोनिस्ट, इस टाइप्स के ड्रग्स आपको दिखाई देते हैं। और मिक्स्ड में इफिड्रिन आपको एक ड्रग दिखाई देगा। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट इज द अपोजिट ऑफ द एड्रेनर्जिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक सिस्टम में फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसमें रिलैक्सेशन आपको दिखाई देगा। तो अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, अल्फा 2 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट आपको दिखाई देंगे। बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट एंड बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और उसके फोर्थ जनरेशन में आपको थर्ड जनरेशन ऑफ बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट में आपको दिखाई देंगे। इसके बाद कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट इट इज सेम एज पर जो तो अपोजिट होती है एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम से अपोजिट होती है, बट सेम होती है एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम से। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज उसमें जो तो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखाई देंगे आपको, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग, पोटेंशिएट एक्शन ऑफ द एसिटिल कोलिन। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट इट इज अपोजिट ऑफ द कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, उससे अपोजिट होगा। और ये सिस्टम इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैरासिम्पैथोलाइटिक नर्वस सिस्टम आपको दिखाई देंगे। एंटी मस्करिनिक इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, एंटी निकोटिनिक इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, कोलिनस्टेरॉइड्स आपको इसमें दिखाई देता है। आफ्टर दैट द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस तरह के आपको फंक्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, इनहिबिट्स द सलाइवेशन, इंक्रीज द हार्ट बीट, इसमें दिख रहा है आपको इसका अपोजिट कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, स्टिमुलेट्स द सलाइवा, स्लो हार्ट बीट्स, इस तरह के आपको एक्शंस दिखाई देते हैं। लास्टली रेफरेंसेस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी 7th एडिशन, केजीटी पार्टी और FS की बार आप यूज इसके लिए कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको जो तो ये आपको चैप्टर वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप जो तो हमें इस ईमेल आईडी पर जो तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें जो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। सो थैंक यू।